Welcome again, children. Let's start today's lesson. Today's date is 1st of May 2021. Day is Saturday. Subject is English workbook. Topics are lesson 6 asking questions and lesson 7 that is also asking questions. So there are two lessons that are based on the same topic asking questions. Lesson 6 asking questions when, where, why, how. These four question words you will learn in this lesson where you have to use the word when, where, why and how. So read the following sentences. When do you go to bed? So it is asking about the time. Okay, time के बारे में बात हो रही है कि when do you go to bed? I go to bed at 9 o'clock. Now question 2 is where are your bags? It is the place we are talking about. आपकी बुक्स कहाँ है? प्लेस पूछा जा रहा है. So they are in my bag. Third is why are you sad? यहाँ पे आपसे रीज़न पूछा जा रहा है. ये क्वेश्चन इज अबाउट द रीज़न कि तुम क्यों सैड हो. सो दैट इज द रीज़न बिकॉज माई लिटिल डॉग इज लॉस्ट. नाउ क्वेश्चन 4 इज हाउ डू यू गो टू स्कूल. अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है बाय मीन्स ऑफ, आप कैसे जाते हैं स्कूल. ओके, so I go to school by bus. So when you are talking about the time, use the question word when. You are talking about the place, where, reason, why. आपको कोई reason के बारे में पूछना है कि क्यों आपने ऐसा किया. You use the question word why. And how वहाँ पे use होता है जहाँ पे आपसे कोई कि आपने ये कैसे किया. So there you use the question word how. Now fill in the blanks with when, where, why and how. अब आपको क्वेश्चन देखना है कि किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है एंड देन यू हैव टू यूज ईदर वन ऑफ द क्वेश्चन वर्ड. फर्स्ट इज डैश डज मिस्टर सिन्हा गो टू हिज ऑफिस. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैसे, यानी कि बाय व्हाट मीन्स. आंसर इज ही गोज ऑन फुट. देन इट मीन्स वो कैसे जाते हैं. बाय व्हाट मीन्स ही गोज टू द ऑफिस. द बाय बस, बाय टैक कार, बाय ऑन फुट और हाउ. So the question word we should use is how. How does Mr. Sinha go to his office? Question 2 is dash is your birthday. यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है. ठीक है. So it is on 1st of June. So we will use the question word when. टाइम पूछा जा रहा है. When is your birthday? Dash are you crying? Dash are you crying? यहाँ पे आपसे रीज़न पूछा जा रहा है कि क्यों तुम क्राइंग कर रहे हो. Because a bee stung me. So you will use the question word why. Why are you crying? Because a bee stung me. 4 is dash are children, they are in the park. यहाँ पे आपसे place के बारे में पूछा जा रहा है. You will use the question word where. Where are the children? They are in the park. Question 5 is dash does the sun rise. Again time है in the morning. टाइम के बारे में बात हो रही. मॉर्निंग इज द टाइम. सो व्हेन डज द सन राइज. क्वेश्चन 5 इज when does the sun rise. 6 is do you go to bed. Dash do you go to bed at 8:30. यहाँ पे अगेन आपसे टाइम पूछा जा रहा है. आप ये टाइम बता रहे 8:30 पे आप बेड पे जाते सोने जाते हैं. When do you go to bed. Question 6 we will use the question word when. When do you go to bed. 7th is dash is the dog barking बिकॉज देर इज समवन नॉकिंग एट द डोर. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों, रीज़न. डॉग क्यों बार्किंग कर रहा है, क्योंकि कोई गेट पे खड़ा है. सो वाई इज द डॉग बार्किंग. डैश इज योर हैंकरचीफ इन माई पॉकेट. प्लेस पूछा जा रहा है. सो वेयर इज योर हैंकरचीफ इन माई पॉकेट. वेयर इज योर हैंकरचीफ इन माई पॉकेट. ओके, सो आपको पता चल गया हाउ आपको कहाँ यूज़ करना होता है. when you are talking about what means. when आपको कब यूज़ करना होता है, जब आप कहीं टाइम के बारे में पूछते हैं. why with the reason and where place. ठीक है. नाउ सेम थिंग विल बी यूज फॉर इन दिस लेसन. ये सब जो आप पढ़ चुके हैं यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. हेयर क्वेश्चन लेसन नंबर 7 आस्किंग क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको कोई नया वर्ड नहीं सिखाया जा रहा. ऑलरेडी जो आप लर्न कर चुके क्वेश्चन वर्ड्स उन्हीं से रिलेटेड होगा ये. सो A exercise. A new people has joined your class. You want to know about her. First read the answers, then choose the correct question from within the brackets and write it in the blanks. यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि एक न्यू pupil that is a new student आपकी क्लास में आया है.
आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज सब लोग, कोई नया बच्चा आता है आप जानना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही है सेम कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, ठीक है, कि आप उसके बारे में कैसे उससे पूछेंगे। तो आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, सबसे पहले आंसर्स दिए आपको, नीचे आंसर्स दिए और ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, एक सही है एक गलत है। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड राइट द करेक्ट क्वेश्चन इन द ब्लैंक स्पेस। So let's start. First is, are you Leila? What is your name? So answer is, I am Leila. So what should be your question? आपको पहले से उसका नाम तो नहीं पता है, तो you will directly ask what is your name. The correct question here in this situation should be what is your name. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट इज योर सरनेम? इज गुप्ता योर सरनेम? अगेन आपको तो पता नहीं उसका नाम गुप्ता है कि नहीं है, सो आप उससे क्या पूछेंगे? व्हाट इज योर सरनेम? व्हाट इज योर सरनेम? शी विल आंसर माय सरनेम इज गुप्ता. देन क्वेश्चन थर्ड इज व्हेन वर यू बोर्न और व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सो आप दोनों में से कोई, दोनों ही सही है, बट द आंसर इज इट इज़ 30th of May 2001 सॉरी. सो इसलिए यहाँ पे द करेक्ट क्वेश्चन दैट वी शुड यूज इज व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? ओके, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? सो क्वेश्चन 4 है वेयर डू यू लिव? व्हाट इज योर होम एड्रेस? तो दोनों में से वैसे तो दोनों ही क्वेश्चन सही है, बट यू कैन, द करेक्ट appropriate क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज योर होम एड्रेस? व्हाट इज योर होम एड्रेस? इट इज़ 4A ब्लॉक बी गुलमोहर कॉलोनी न्यू दिल्ली. क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा एड्रेस बताया जा रहा है, सो आंसर में क्योंकि पूरा एड्रेस बताया जा रहा है, सो वी आवर क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज योर होम एड्रेस. ठीक है ना. इफ़ यू यहाँ पे सिर्फ दिया होता गुलमोहर कॉलोनी न्यू या आई लिव इन गुलमोहर कॉलोनी न्यू दिल्ली, सिर्फ इतना ही दिया होता तो आप पूछते, सिंपली पूछते वेयर डू यू लिव. बट यहाँ पे पूरा होम एड्रेस दिया है, इसलिए द करेक्ट क्वेश्चन हेयर शुड बी व्हाट इज योर होम एड्रेस. देन नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर? डू यू लाइक द कलर ग्रीन? सो आंसर इज आई लव रेड. तो सिंपली आपका क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. क्योंकि यहाँ पे आपने नीचे वो चॉइस नहीं दिया ना उसने कुछ, सो यू विल सिंपली आस्क व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर. देन व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स और व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? अब आंसर क्या दिया? आंसर में कहा है आई लव क्रिकेट. सो क्रिकेट हमको पता है सब्जेक्ट नहीं होता, इट इज़ अ गेम. सो यू विल, द क्वेश्चन हेयर शुड बी व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम? What is your favorite game? Okay. Then 7th is what do your parents like or what do your parents do? Answer आप पढ़ रहे हैं my father is a pilot, my mother is a teacher. तो यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में बताया कि उसके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है. सो द क्वेश्चन हेयर शुड बी what do your parents do? पेरेंट्स की लाइक्स और डिसलाइक नहीं बताई है उसने आंसर में, सो द क्वेश्चन हेयर शुड बी व्हाट डू योर पेरेंट्स डू. ओके, नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? व्हाट डू यू ईट इन द इवनिंग? आंसर आपको दिया आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. यहाँ पे ये खाने की बात नहीं है, प्लेइंग अगर फ्रेंड्स के साथ करें तो खाना बीच में नहीं आ सकता, ईटिंग बीच में नहीं आएगी, ये तो प्लेइंग के बारे में आ रहा है. सो द क्वेश्चन हेयर शुड बी व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? ओके, व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग? आई प्ले विद माई फ्रेंड्स. 9th इज वेयर आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव? सो यहाँ पे आंसर्स दिया आई हैव 2 ब्रदर्स. तो उसने सिंपली बताया कि मेरे 2 भाई हैं, ये नहीं बताया कि उसके भाई बहन कहाँ हैं. ठीक है ना, स्कूल ना कॉलेज ना कुछ नहीं बताया उसने कि मेरे भाई बहन स्कूल में है, मेरे भाई बहन घर पे हैं, मेरे भाई बहन अमेरिका में है, कुछ नहीं बताया उसने. सिंपली ये बताया मेरे 2 भाई हैं. सो द क्वेश्चन हेयर शुड बी हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव?
How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? So this is how you have to find the correct question and write it in the blank space. First आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, दोनों ऑप्शंस पढ़ लेंगे, फिर उसका आंसर पहले रीड करके देख लेंगे कि आंसर में क्या उसने आंसर किया, उसके अकॉर्डिंग यू विल चूज द करेक्ट क्वेश्चन. Now you can work in pair and practice asking and answering the above question, because these questions are very general question. If you meet someone new, you can ask such kind of questions to know about him or her. Okay, and in the same way you can give your own introduction also to someone. Now hide and seek. This is a very interesting exercise here. See, find the hidden word in each word, then write them in the blank. यहाँ पे हर word के अंदर एक hidden word है. You have to find out that hidden word and then you have to write here. Like care. Care के अंदर एक hidden word है R. Tin. Tin के अंदर एक hidden word है in. 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 Elephant. Elephant के अंदर hidden word हुआ ant. 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 Spread. Read. 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 Where. Here. 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 Broad. Road. 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 Land. And. 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 Neatly. Neat. 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 Tears. Ears. 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 Person. Son. 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 Gold. Go. और ओल्ड यू कैन राइट एनीथिंग. या तो आप गोल्ड लिख सकते हैं या ओल्ड भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे. यू कैन राइट आइदर गोल्ड गो और यू कैन राइट आइदर ओल्ड. एक्सक्यूज मी. लिसन 10 TEN 10. मैटर मैट MAT मैट. कॉटन आप कॉट लिख सकते हैं या टन भी लिख सकते हैं. ठीक है, आपके पास यहाँ पे 2 वर्ड्स हो गए, कॉट और टन. कॉट और टन. ठीक है, टन का मतलब ढेर सारा जो होता है टन. देन स्टेबल टेबल TABLE. हैंडल हैंड HAND हैंड. ओके, आई विल रिपीट अगेन. सेकेंड इज इन, थर्ड इज एंड, फोर्थ इज रीड, फिफ्थ इज हेयर, सिक्स्थ इज रोड, सेवंथ एंड, एट्थ नीड, 9 years, 10 son, 11 go or old, 12 10 10 is son, 11 is go or old, 12 is 10, 13 is mat, 14 is cot or ton, 15 is table, 16 is hand. Now writing sentences. Here you have to write the sentences given the यूजिंग द गिवन फ्रेजेस. कुछ फ्रेजेस दिए, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. लाइक ईटिंग स्लोली. ठीक है, ईटिंग स्लोली हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड प्रॉपरली. ईटिंग स्लोली हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड प्रॉपरली. देन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. एप्पल्स और ऑरेंजेस का मतलब ये होता है कि दो चीज़ें जो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो. ठीक है, दो बहुत अलग अलग चीज़ें. सो यहाँ पे दे वर ट्विंस बट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. वो ट्विंस थे लेकिन वो एप्पल्स और ऑरेंजेस थे. ट्विंस होने के बाद भी वो बिल्कुल डिफरेंट थे, शक्ल में भी डिफरेंट थे, उनकी आदतें भी डिफरेंट थी. सो दे वर ट्विंस बट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. द फैट मैन. द फैट मैन इज वॉकिंग स्लोली. द फैट मैन इज वॉकिंग स्लोली. माई फ्रेंड. माई फ्रेंड रितु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. माई फ्रेंड रितु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. ओके, ये my friend Ritu likes to play cricket. Then on the roof, the children were playing on the roof. The children were playing on the roof. Okay, this is how you can make your own sentences, make the sentences as I have given, or you can make your own sentences also. It's up to you. So this is all for today. Thank you, children.